Dear students, welcome back toward the exercise understanding the poem. Answer the following questions. Students, first question is, in the first half of the poem, where is the poet? In the first half of the poem, where is the poet? Poem के first half में कहाँ पर है? You can see the answers from the notes. In the first half of the poem, the poet is in the lecture room. In the first half of the poem, the poet is in the lecture room. Let's move toward the second question. Who is he with? वो किसके साथ है? And what is he doing? और वो क्या कर रहा है? ठीक है ना? Who is he with and what is he doing? वो किसके साथ है और वो क्या कर रहा है? ठीक है? Let's move toward the second answer. He is with an audience listening to a learned astronomer. ठीक है? He is with an audience. वो audience के साथ है. लिसनिंग टू अ लर्नड एस्ट्रोनॉमर और लर्नड एस्ट्रोनॉमर की जो है वो उसके लेक्चर को सुन रहा है. थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड्स और फ्रेजेस शो दैट द एस्ट्रोनॉमर इज रिस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड द ऑडियंस. कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस शो करते हैं दैट द एस्ट्रोनॉमर इज रिस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड द ऑडियंस, की ऑडियंस और हमारा पोएट जो है वो एस्ट्रोनॉमर की रिस्पेक्ट करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड द आंसर सी, learned and with much applause. These words shows that the astronomer is respected by the poet and the audience. What scientific tools and methods does the astronomer use? कौन से scientific tools और methods को जो है वो astronomer use करता है. ठीक है? The scientific tools and methods that the astronomer uses are proofs and figures arranged in charts and diagrams used to add, divide and measure. ठीक है? Let's move toward the next question. In the second half of the poem, where is poet? In the second half of the poem, poem के second half में where is the poet? Poet कहाँ पर है? In the second half of the poem, the poet is outside. He is outside. वो lecture room से बाहर आ जाता है. ठीक है ना? Who is he with and what is he doing? वो किसके साथ है और वो क्या कर रहा है? He is on his own. वो अकेला है. ठीक है? And he is looking at sky. और वो sky की तरफ, आसमान की तरफ देख रहा है. What words and images in the first half of the poem are a contrast to the perfect silence in the final line. ठीक है? What words and images in the first half of the poem आर कॉन्ट्रास्ट. कौन से फर्स्ट हाफ में वर्ड्स और इमेजेस यूज़ हुए हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो कि तजाद में हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं ऑफ द परफेक्ट साइलेंस के. बिल्कुल यानी परफेक्ट साइलेंस के लिए इसका अपोजिट वर्ड फर्स्ट हाफ में कौन सा यूज़ हुआ है. ठीक है ना? इसके लिए हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है मच अप्लॉज का. ठीक है? मच अप्लॉज का वर्ड जो है यहाँ पर यू कैन सी मच अप्लॉज. ठीक है ना? ये वाला फर्स्ट हाफ में इसके लिए वर्ड यूज हुआ है. लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट. डिस्कस इट फर्स्ट. आई हैव कट दिस क्वेश्चन बट लेट्स मूव. लेट्स रीड इट. इट मे बी इम्पोर्टेंट. ठीक है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? स्टूडेंट्स, time and again I have discussed the message of the poem in the explanation that the message of the poem is this, that the scientific tools cannot define the fascination of nature, cannot define the beauty and charm and attraction of the nature. ठीक है? And the learning should be based on experience. ठीक है ना? These are the message of the poem. But this question is cut. Let's move toward the rhyme scheme of the poem. Rhyme scheme: the poet the poem does not have a rhyme scheme. Poem में rhyme scheme follow नहीं हुई है. The poet uses rhythm, line length and other devices. Yes, let's move and discuss what type of devices does he use. Count the syllables in each line.
हर लाइन के सिलेबल्स को आपने काउंट करना है. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द पैटर्न इन द फर्स्ट 4 लाइन्स. फर्स्ट 4 लाइन्स में, इन द फर्स्ट 4 लाइन्स में कौन सा पैटर्न जो है वो उसने यूज़ किया है. व्हाट डू यू थिंक इज सजेस्टेड बाय दिस. आप क्या सोचते हो कि उसने क्या सजेस्ट करने की कोशिश की है. लेट्स मूव टुवर्ड द सिलेबल्स. फर्स्ट काउंट इट. व्हेन सिंगल सिलेबल, व्हेन आई सिंगल, हर्ड सिंगल सिलेबल यानी कि एक ही साउंड होती है. दी लर्निड 2 सिलेबल्स, लर्निड, एस्ट्रोनोमर 4 सिलेबल्स. ठीक है ना. व्हेन सिंगल सिलेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलेबल्स काउंट करके मैंने यहाँ पर राइट कर दिया. ठीक है. इन द सेम वे 14 syllables are there in the second line. ठीक है. 18 syllables are there in the third line. You can count also students. When the proofs single syllables, the figures 2 syllables were arranged single syllables in columns 2 syllables, B4 2 syllables, me single syllable. 1 2 3 4 5 figures 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. In this way, I have written all the syllables. I have written the syllables of all lines. 18 syllables in third lines, 23 syllables in fourth line, 14 syllables in fifth lines, 14 in sixth, 13 in seventh, and 10 syllables again in the last lines. Looked up, looked single syllable, up single syllable. In perfect silence at the stars. In perfect 2 syllables. Silence 2 syllables at the stars, single syllables. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. These are 10 syllables. ठीक है. उन्होंने हमसे बोला था कि count the syllables. The question was count the syllables in each line. What do you notice about the pattern? Pattern के बारे में आपने क्या notice किया? We counted the syllables and we counted the syllables and write the pattern 10, 14, 18 and 23 of the first 4 lines. ठीक है. What do you think is suggested by this? In these lines the word suggested that he is listening the lecture of a famous astronomer in the lecture room. ठीक है. This is suggested in the first 4 lines. And the astronomer is much appreciated by the audience because he is giving proofs regarding celestial bodies. This thing is discussed or suggested in the first 4 lines. What do you notice about the length of the last 4 lines? लास्ट 4 लाइन्स की लेंथ भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, जिसमें लास्ट लाइन की लेंथ में 10 syllables आ रहे हैं. What does this suggest about the poet's feeling? पोइट्स की फीलिंग के बारे में ये लास्ट 4 लाइन्स सुजेस्ट करती हैं दैट ही इज़ फीलिंग टायर्ड एंड बोरिंग. ठीक है. And when he comes out of the lecture room, he feels easy and peaceful. ठीक है ना. Note that the poem consists of 1 sentence. Just yes, हमें पता है कि हमारी पोएम जो है वो जस्ट 1 सेंटेंस पे 1 स्टांजा पे कंसिस्ट है, लेकिन हमने उसको खुद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बिकॉज उसमें 2 सिग्नल्स दिए गए हैं, 2 मोड्स और 2 बिहेवियर पोइट्स पे डिस्कस किए गए हैं. What has the poet done to signal a change in his thoughts and feelings? ठीक है. वो क्या करता है, वो बिल्कुल ही चेंज कर देता है. फर्स्ट में वो इनसाइड द पोएट इज इनसाइड द लेक्चर रूम और सेकेंड में ही इज आउटसाइड द लेक्चर रूम. ठीक है ना. वट आर द डिफरेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ही हैज़ इन द 2 halves ऑफ द पोएम. बेटे वी हैव डिस्कस्ड इट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम कि किस किस्म की फीलिंग्स जो हैं इन द फर्स्ट 2 halves, in the 2 halves, in the first half and in the second half, what types of feelings are discussed by the poet. The poet uses a rhetorical device. Listen the word again. Rhetorical device called anaphora in this poem. ठीक है ना. The poet uses a device, anaphora. Let's move toward the definition of this term. Anaphora is the repetition of a word or phrase at the beginning of a successive clause. ठीक है. मेन क्लॉज जो होता है हमारा, सक्सेसिव क्लॉज जो होता है, उसकी बिगनिंग में द रेपिटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड की या फ्रेज की रेपिटिशन को, किसी एक खास वर्ड की रेपिटिशन को, उसके बार बार आने को जो है एनाफोरा बोलते हैं. इट इज़ ऑफन यूज्ड इन पोइट्री एंड इन स्पीचेस टू एम्फसाइज एन आइडिया और क्रिएट अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट. कोई आइडिया
ठीक है, किसी आइडिया को एम्फोसाइज करने के लिए, उसको इंसिस्ट करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम स्पीच करते हैं तो उस टॉपिक को बार बार अपनी स्पीच में रिपीट करते हैं, तो ये एनाफोरा होता है, ठीक है ना। सेम हमारे पास हमारा पोइट जो है एक वर्ड को टाइम एंड अगेन यूज़ कर रहा है, when and when. This is called anaphora, ठीक है। नेक्स्ट, when is repeated at the start of the first 4 lines, the repetition shows that the lecture is dragging on. कि लेक्चर जो है वो ड्रैगिंग ऑन किया जा रहा है, लेक्चर इज ओवरवेल्म्ड, ठीक है ना, ये उसके ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। एंड नॉट कैप्टिवेटिंग द पोइट, एंड द पोइट इज नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड द लेक्चर, ठीक है ना। ये व्हेन का वर्ड यूज़ करके, एनाफोरा को यूज़ करके आपको बताया जाता है कि द लेक्चर इज ड्रैगिंग ऑन द पोइट, ही इज़ नॉट कैप्टिवेटेड, ठीक है। द लेक्चर इज नॉट कैप्टिवेटिंग द अटेंशन ऑफ द पोइट, ठीक है। हाउ डज विटमन यूज repetition and sounds in the second half of the poem to convey that the poet is captivated by the stars in the night sky, ठीक है। फर्स्ट हाफ में तो उसने बोला कि when, जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, जब ऐसे उसने एविडेंस दिए तो कैसे कैसे मैंने फील किया, जब ये किया, लेकिन लास्ट में वो कैप्टिवेटेड है। द पोइट इज कैप्टिवेटेड बाय द अट्रैक्शन एंड ब्यूटी ऑफ द स्काई एंड स्टार्स। उसके लिए उसने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है ना। उसके लिए उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं मिस्टिकल मॉइस्ट, रेपिटेशन ऑफ द एम साउंड, मिस्टिकल मॉइस्ट, टाइम टू टाइम, ठीक है। टिकिंग की साउंड, टी की साउंड जो है दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मिस्टिकल मॉइस्ट, टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम, and then silence at the stars, silence stars, s की sound जो है that is repeating, the repetition of the sound in mystical moist is the repetition of the sound m, time to time is the repetition of sound t, ठीक है, and then silence star is the repetition of sound s, shows that the poet is captivated by the beauty and attraction of the nature. Then students, working with words, there is contraction. Contraction is the short form of the words, ठीक है। When speaking and in informal writing, people often use contraction, ठीक है। When speaking, जब आप बोलते हैं, and in informal writing और informal writing में people often use contraction। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मैसेज के लिए MSG, ठीक है, एंड प्लीज़ के लिए PLZ, ठीक है। बिटवीन के लिए आप B/ और T का या W का वर्ड राइट कर देते हैं, करते हैं ना, ये वाले वर्ड्स यूज़ आप लोग करते हैं, सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इनफॉर्मल राइटिंग है ये, फॉर्मल एक्चुअल में हमारी डिक्शनरी में नहीं पाई जाती, ठीक है ना, ये इनफॉर्मल राइटिंग होती है। एग्जाम्पल में देख लें, दे माइट से आई डोंट लाइक them instead of I do not like them। उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऊपर अपॉस्ट्रोफी का कोमा जो है वो राइट कर दिया है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो डाल दिया और उसमें ओ को साइलेंट कर दिया, यहाँ पर TH को साइलेंट कर दिया, ठीक है ना। यू कैन सी दैट डोंट को आप डू नॉट राइट कर सकते हो, एंड देम को इस वे में राइट कर सकते हैं। ही कुड हैव इंस्टेड ऑफ ही कुड हैव, यानी HA को साइलेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, वी यूज कॉन्ट्रैक्शन इन डिफरेंट वेज एज वी राइट द वर्ड कांट, ठीक है। आई कांट कम, आई कांट रीड, तो CAN O को साइलेंट करके हम कोमा डाल के उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी कोमा डाल के T को राइट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर्स। विच 3 वर्ड्स डज द पोएट कॉन्ट्रैक्ट? कौन से 3 वर्ड्स को पोएम में कॉन्ट्रैक्ट करता है? द फर्स्ट वर्ड विच ही कॉन्ट्रैक्ट इन द पोएम इज लर्नड, wandered and looked. Let's move toward